Good morning, everyone. So, in our previous videos, we have talked about suspension, solution, and colloids. So, let's talk about how to separate a mixture. As you know that most of the natural substances are not chemically pure. So, take a common example here that have you seen someone removing unwanted materials from rice or wheat? है ना? So this is a common example of separation. So let's talk about some techniques which we used here to separate the mixture. That means the substance which we have mixed in a solution. Now how we can separate it. So we will now look about the techniques of how to separate the mixtures. हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने सॉल्यूशन सस्पेंशंस और कोलाइड्स के बारे में आपका क्या करा था, स्टडी करा था। और साथ ही साथ मैंने आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में भी क्या है, एक्सप्लेन किया था। तो अब हम बात करते हैं आपकी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की, यानी कि हम मिक्सचर्स को आपका कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए कुछ जो नेचर में आपके क्या है, हर एक सब्सटेंस क्या है, केमिकली क्या है, आपका प्योर नहीं है। तो कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे हम घर पे भी करते हैं, आपका चावल में से अनवांटेड जो कूड़ा होता है जो हमारे काम का नहीं होता, हम उसको क्या करते हैं, आपका हटाते हैं। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, जो हमने सब्सटेंस को क्या करा था, आपका मिक्स किया था, तो हमें उसको क्या करना है, आपका हटाना है। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो हम आपकी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जो सबसे पहली फर्स्ट टेक्निक आपकी क्या है, दैट इज एवोपरेशन। दैट मीन्स द फर्स्ट प्रोसेस is your evaporation. So evaporation, have you know about ink? So ink is a mixture of your water plus the color of the ink. That if it will be blue, then blue color, it will be red, then red, so on. So in this technique, this technique is basically known as your evaporation. So what we do in evaporation, now take a look on that. So evaporation is the process of separating liquid and solid from a solution by heating. That means you have to heat that solution, and then you will get the separation of the mixture from the ink. So what we do in this, that you have to fill a beaker with water, and what you have to do there, you have to place a वॉच ग्लास ऑन इट। दैट मीन्स आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उस बीकर में क्या करना है, आपने आधा क्या भरना है, पानी भरना है। उसमें क्या करना है, आपने एक वॉच ग्लास रखनी है। वॉच ग्लास आपकी एक शीशे की प्लेट जैसी होती है, छोटी सी। आपको उसको क्या करना है, रखना है। देन पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वॉच ग्लास एंड स्टार्ट द बर्नर। देन व्हाट हैपन, वाटर विल evaporate due to evaporation. Then you have to stop hitting when there is no vapor seen around that, and you will get some solid powder, that is a dye. So that means आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, बीकर में हाफ वाटर भरना है। वाटर भरने के बाद आपने क्या करना है, कुछ ड्रॉप आपकी इंक की क्या करनी है, उस वॉच ग्लास में क्या करनी है, डालनी है। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, हीट करना है। तो जब आप हीट करोगे, आपको उसको तब तक हीट करना है जब तक आपका क्या है, वेपर्स आपके दिखने बंद ना हो जाए। उसके बाद आप देखोगे एक पाउडर आपका क्या है, जमा है। तो उस पाउडर क्या, आपकी डाई है। दैट मीन्स वाटर आपका क्या है, एवोपरेट हो गया। जो डाई हमने इंक बनाने के लिए यूज की थी, वो इंक आपकी क्या है, उससे निकल के आ जाएगी। So there is also a drawback of evaporation, that you can only recover the solute component only in solid or powder form. So if in the case if the solvent is inflammable, you cannot use flame for it. है ना? So let's move on and let's talk about another process, that is filtration. So ये जो evaporation है, ये आपका हर जगह यूज नहीं किया जा सकता। मान तो इन चीज़ों के लिए क्या है, अलग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो अब हम आगे उस टेक्निक के बारे में या उस प्रोसेस के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। That the next process is our filtration. So what is filtration? It means that to filtrate something. So what you have to do, you have to take chalk powder and water,
So what you have to do is that in this process we will use filter paper. Actually filter paper is present in the lab, and this paper is used for filtration. So you have to just fold that paper and place it on funnel, and one beaker will be in blue as I shown in the diagram. So then we put the solution on that funnel, and then you will get that the solid particle will be remain in funnel, and the liquid particle will go down the beaker. So the particle which remain in your funnel is known as your residue. ओके आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, एक आपने फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर को क्या करना है, फोल्ड करना है, और साथ ही साथ आपका क्या लेना है, टाइपोड स्ट्रेंट लेना है। उसमें आपने क्या करना है, एक फनल लेना है, और नीचे से आपने क्या करना है, बीकर रख देना है। उस फनल में आपने सॉल्यूशन को क्या करना है, आपका डालना है, ठीक है। और पेपर लगा के सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, डालना है। तो आप देखो जो जो लिक्विड सब्सटेंस है वो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो है आपके, जैसे चौक के जो पाउडर है वो आपका ऊपर की तरफ रह जाएगा, और पानी आपका क्या है, नीचे की तरफ बीकर के अंदर आ जाएगा। जो पार्टिकल आपका फिल्टर पेपर में रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। और जो पानी आपका बीकर में रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक जो है, हम आगे बढ़ेंगे और उस टेक्निक के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो अनदर टेक्निक है आपकी, डेट इज क्रिस्टलाइजेशन। सो आइए देखते हैं आपका क्रिस्टलाइजेशन क्या है। देखिए एक सॉल्यूशन है, दैट इज योर आपका कॉपर और सल्फेट का सॉल्यूशन है। और अगर हमें उसे क्या करना है, आपका सेपरेट करना है, तो हम किस मेथड से आपका क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो वो चीज़ आपने क्या करनी है, स्टडी करनी है। एक्चुअली जो कॉपर और सल्फेट का सॉल्यूशन है उसे हम विद द हेल्प ऑफ एवोपोरेशन भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि हमने सॉल्यूशन लिया और उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। बट जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आता है वो आपका कैसा होता है, जनरली आपका इम्प्योर होता है। यानी कि उसमें इतनी ज़्यादा क्या है, प्योरिटी नहीं हो सकती है, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ आपकी क्या है, ज़्यादा है। तो फॉर गेनिंग मोर प्योरिटी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं आपका क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अनदर एक और टॉपिक है आपका, डेट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है कि हम कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, आपका सेपरेट करते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन। तो ये मेथड आपका इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो आपके नीचे की तरफ क्या होंगे, फोर्स्ड होंगे, फोर्स से क्या होंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो आपकी ऊपर की तरफ क्या है, आपका स्विंग करते रहेंगे। तो ये एक मशीन होती है, डेट इज सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उससे किया जाता है। इसको आप हाथ से भी रोटेट कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकली आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। जैसे वॉशिंग मशीन में होता है कि आप क्या करते हो, कपड़ों को डालते हो तो ड्रायर उसको क्या करता है, उसमें क्या होती है, स्पिन होती है, जिसकी वजह से क्या है, उसके रोटेशन के कारण हमारे जो गीले कपड़े हैं वो क्या आपके ड्राई होते हैं। ठीक इसी तरह आप जब बटर को आप क्या करते हो, क्रीम से क्या करते हो, सेपरेट करते हो, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, स्पिनर का यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए, या बटलर का यूज़ करते हैं। तो वो प्रोसेस भी आपकी किसके अंदर आती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर आती है। So let's talk about the another topic, that is your sanctification. It is a process which is used for separation of colloidal particles from solution. As I told earlier that about colloidal particles, and that time also I was discussing about the centrifugation. So this matter is based on the principle that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when they spin rotatedly. Actually, a rotating machine is used, that is centrifugal machines, and it also can be done by rotating by hand or electrically. So it is used in diagnostic laboratories for blood and urine test, for in case of washing machine to squeeze out water from wet clothes, dairies and home to separate butter from cream.